جی ہم دونوں کو کرسٹل فاؤنڈیشن اسپورٹس ٹورنامنٹ 2016 میں خوش آمدید کہتے ہیں. تو آپ دونوں ٹیمز کو معلوم ہوگا کہ آج یہ ہمارا جو ہے یہ دوسرا میچ ہے. کل ہنری کے اور YWAM کے درمیان میچ ہوا جو کہ YWAM جیت گئی تھی, اور ہم خداوند سے دعا کرتے ہیں کہ دونوں میں سے جو ٹیم اچھی کھیلے وہ ضرور جیتے. تو ہمارے ساتھ آج خداوند کا پاک کلام شیئر کرنے کے لیے بھائی ایڈیسن, پاسٹر ایڈیسن ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ ملتان ڈائسس میں اپنی خدمت کر رہے ہیں اور باقاعدہ طور پہ شانتی نگر چرچ میں جو ہے خانے وال میں یہ وہاں پہ پاسٹر کی خدمت جو ہے سر انجام دے رہے ہیں. ہم ان کے بہت مشکور ہیں. آج وہ ملتان واپس جا رہے تھے لیکن وہ ہماری ریکویسٹ پہ جو یہاں پہ رکے ہوئے ہیں, تو ہم تالیوں کے ساتھ جو ہے ان کو ویلکم کرتے ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں بھائی سلیمان کا اور ٹیم کا جس نے مجھے دعوت دی اور اتنا اچھا میچ دیکھنے کو مل گیا. بہت کم موقع ملتے ہیں اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ مسیحی سب نوجوان جو ہیں وہ کھیل رہے ہیں اور ان کو دیکھ کے آپ کو یاد ہے ایک مسیحی نوجوان کھیلا کرتا تھا ٹیم میں, ہم کیسے خوش ہوتے ہیں. اور آج سارے مسیحی نوجوانوں کو دیکھ کے بہت خوشی ہوئی ہے. خداوند آپ سب کو برکت دے. اس سے پیشتر کہ ہم خداوند کا کلام تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں. میں چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر ایک زبور گائیں, اور یہ بڑا مشہور زبور ہے, آپ سب کو آتا ہوگا. زبور نمبر 119. ہم اس کی 2 آیتیں بس گائیں. زبور نمبر 19 اس کا دوسرا حصہ. جوان بھلا کس طرح صاف رکھے گا اپنا. کہ آپ سب جوان ہیں تو یہ کلام سے ہدایت ہم پائیں گے کہ کیسے اپنی راہ کو صاف رکھیں. جوان بھلا کس طرح صاف رکھے گا اپنا راہ. جوان بھلا کس طرح صاف رکھے گا اپنا راہ. جوان بھلا کس طرح تیرے کلام میں موافق چلے. تیرے کلام میں موافق چلے. رکھے او دے نگاہ. جوان بھلا کس طرح صاف رکھے گا اپنا راہ. جوان بھلا کس طرح تینوں میں ڈھونڈیا مینوں نہ ہون دے. تینوں میں ڈھونڈیا مینوں نہ ہون دے. اپنے حکماتوں گمراہ. جوان بھلا کس طرح صاف رکھے گا اپنا راہ. جوان بھلا کس طرح تیرے کلام میں دل وچ رکھیا. تیرے کلام میں دل وچ رکھیا. کرانا تیرا گناہ. جوان بھلا کس طرح صاف رکھے گا اپنا راہ. جوان بھلا کس طرح تیرے میں حکماں وچ مگن رہاں گا. تیرے میں حکماں وچ مگن رہاں گا. بھولا کلام نہ تیرا. جوان بھلا کس طرح صاف رکھے گا اپنا راہ. جوان بھلا کس طرح. آئیے ہم تھوڑی دیر کے لیے خداوند کے کلام سے رہنمائی پائیں. آپ کو آواز آ رہی ہے سب کو سامنے؟ میں سوچا تھوڑا سا. یہ تو داؤد نے جو ہم نے گیت زبور گایا اس نے بتایا کہ کس طرح سے اور کلام پہ دھیان رکھنے سے. اور اب کلام سے ہم دیکھتے ہیں اور وائس کی کتاب اس کا 11واں باب
नौजवानों के बारे में ख़ास जो मेरे पास कंप्यूटराइज्ड वर्जन है उसमें लिखा हुआ है नौजवानों के लिए नसीहत। और 9वीं आयत में इस तरह से लिखा है, ऐ जवान वो अपनी जवानी में खुश हो और उसके अयाम में अपना जी बहला और अपने दिल की राहों में और अपनी आंखों की मंजूरी में चल, लेकिन याद रख कि इन सब बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में लाएगा। बस गम को अपने दिल से दूर कर और बदी अपने जिस्म से निकाल, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों बातें। और 12वें बाब में इसकी भी हम एक आयत पढ़ेंगे, और अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर, जबकि बुरे दिन हनूज नहीं आए और वो बरस नजदीक नहीं हुए जिनमें तू कहेगा कि इनसे मुझे कुछ खुशी नहीं। आइए हम दुआ मांगे। खुदा आसमानी बाप, मैं तो तेरा अदना सा खादिम हूँ, हम सब तेरे हैं, ये कलाम भी खुदावंद तेरा है। इन नौजवानों के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने इनको मौका दिया कि ये आज इस जगह पर फ्राहम हो सके। खुदावंद हम इस मौके के लिए भी तेरे शुक्रगुजार हैं। हम क्रिश्चियन स्पोर्ट्स फाउंडेशन के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इसका इनेकाद किया। खुदावंद हम दुआ करते हैं कि इस तरह के मौके इनको मयस्सर रहें और ये इसी तरह तेरे कलाम को भी याद रखें और उसमें बढ़ते चले जाएं। इस कलाम के लिए खुदावंद हम दुआ करते हैं तो हमारी हिदायत और रहनुमाई करें, ताकि जो कुछ अखज़ करें उसको अपनी ज़िंदगियों में अपनाएं। खुदावंद यीशु के नाम में। मेरे अजीज़ों, जवानी की बहुत अहमियत है और आप समझते हैं कि जब हम बच्चे हैं तब भी कोई अहमियत नहीं, कुछ नहीं कर सकते, बड़ों के ताबे रहना पड़ता है और हर कोई बताता है ऐसे करो ऐसे। लेकिन जब जवान है तो उस वक्त कुव्वत भी है, ताकत भी है और बालग भी आप पूरे हैं, बालग नजरी भी है और आप समझदारी में कदम रख चुके हैं और कुव्वत और ताकत आपके पास है। आप जानते हैं कि लोग नौजवानों को फोकस करते हैं, सियासी तौर पर नौजवानों को फोकस किया जाता है कि ये हमारे साथ होंगे तो हम जीत जाएंगे, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ताकत और कुव्वत इस्तेमाल की जा सकती है इस जमाने में। वो काम जो मेरी जैसी उम्र के लोग जो है वो शायद भाग दौड़ नहीं इतना सकते और इतनी कुव्वत नहीं है उनमें। आपके पास कुव्वत है, आप उसको बड़ी खुश उसलूबी से, जज्बे की आप में कमी नहीं होती। मैंने देखा कि जब भी कोई मुश्किल बात आती है तो नौजवान आगे बढ़ते हैं और उस मुश्किल में वो कदम रखते हैं और उसको हल कर देते हैं। नौजवानी का जज्बा जो है वो सब कुछ कर गुजरने में काम आता है। समझदारी और मर्दानगी इस वक्त जो है वो आप में आ चुकी है। यीशु की मिसाल हमारे सामने। यीशु मसीह जब बच्चा था तो हम कलाम में पढ़ते हैं लूका में कि वो खुदा की मकबूलियत और इंसान की मकबूलियत में बढ़ता गया, दोनों में बराबर। हम उस वक्त गलती करते हैं जब एक में हम इंतहा कर देते हैं और दूसरे की हमें फिक्र नहीं होती या हम दूसरे को कम वक्त देते हैं। और खुदा यीशु का अपने अल्फाज है, जब उनको एक सिक्के के बारे में पूछा गया कि कैसर को जजिया देना रवा है या नहीं, और यीशु ने बड़ी प्यारी मिसाल वहाँ पर दी कि जो कैसर का है कैसर को दो और जो खुदा का है वो खुदा का। इसका मतलब ये है कि दोनों को बैलेंस रखना है, दुनिया को भी और खुदा के कामों को भी। तो यहाँ पर जो है उसमें बैलेंस रखने की ज़रूरत है कि हम उसमें और खुदा की मकबूलियत और इंसान की मकबूलियत में बढ़ते चले जाएं। खुदावंद आपको इंसानों की मकबूलियत में भी बढ़ाए, लेकिन ये ज़रूरी है कि खुदा की मकबूलियत में भी हम बढ़ें। और ये जो हिस्सा मैंने तिलावत किया आपके सामने ख़ास तौर पर वाइस की किताब से, वो एक नसीहत के तौर पे बात करता है और वो जवानों को कहता है कि अपनी जवानी के दिनों में
खुश रहो और उसके अयाम में अपना जी बहला और अपने दिल की राहों में चल। इसका मतलब है कि अगर आप इसको पढ़ें ध्यान से तो आप समझ सकते हैं कि जो कुछ जी चाहता है करो, जो कुछ भी करना चाहते हो करो, लेकिन जो है बीच में आ जाता है। लेकिन याद रखो कि खुदा इन सब बातों के लिए अदालत करने वो अदालत में लाएगा। और इसलिए ये जो आज़ादी है, कलाम में लिखा है कि आज़ादी को बदी का पर्दा ना बनाओ। आज़ादी तो है, जो कुछ भी चाहे कर सकते हैं, लेकिन इसको खुदा के खौफ में रहकर और हिकमत से और दानिशमंदी से करने की ज़रूरत है। अपने जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर, इसकी बहुत कदर है। और खुदावंद यीशु ऐन जवानी के दिनों में, अब ये रोज़ों के अयाम चल रहे हैं और वो 30 बरस का जवान था जब वो बियाबान में है और वो इब्लीस की इन सारी आजमाइशों पर गालिब आता है। 40 दिन तक वो आजमाया जाता है कंटिन्यूसली, और हम भी हर रोज़ आजमाए जाते हैं किसी ना किसी आजमाइश में, किसी ना किसी मुश्किल में। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि यीशु बशरियत में पूरे तौर पर हमारी तरह आजमाया गया, लेकिन वो उसमें कामयाब हुआ और उसने इब्लीस को जो है वो कलाम से जवाब दे देकर उसको शिकस्त दी, और इसलिए वो गालिब आया उस पर, और वो चाहता है कि हम भी गालिब आए। एक और आखिरी आयत में पढ़ना चाहता हूँ, जो वाइज, जो कि अगर आप पढ़ें पहला बाब तो वहाँ लिखा है कि वाइज शाह यरूशलेम, ये दाऊद का बेटा है, ये बादशाह है, सब कुछ इसने हासिल किया, इसने हर चीज़ को बड़ी करीब से देखा, और इसके बाद ये जो नतीजा निकालता है, अगर आप पढ़े वहाँ लिखा है कि वो कहता है कि हर चीज़ बातिल है, बुतलान है, हवा की चरान है, सब कुछ। आप जवान हैं, कुछ भी चाहे हासिल कर सकते हैं, लेकिन एक वक्त आने वाला है जब आप कहेंगे कि इसमें मुझे कुछ आपकी इसकी खुशी नहीं, कुछ फ़ायदा नहीं मुझे इसका। और उस दिन के लिए वो नसीहत करता है, और हासिल कलाम के तौर पे वो कहता है कि अब सब कुछ सुनाया गया, पूरी 11 बाब जो है 12 बाब उसने पूरे नसीहत की, लेकिन हासिल कलाम में वो कहता है कि खुदा से डर और उसके हुक्मों को मान, कि इंसान का फर्ज कुल्ली यही है। सब कुछ हासिल करने के बाद, शान और शौकत, इल्म, हुनर, फन, सब कुछ हासिल करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा, और हासिल कलाम के तौर पे वो कहता है कि खुदा से डर, उसके हुक्मों को मान, कि इंसान का फर्ज कुल्ली यही है। क्योंकि खुदा हर एक फेल को, हर एक पोशीदा चीज़ के साथ, खा भली हो खा बुरी, अदालत में लाएगा। और यही बात पहले हमने तिलावत में सुनी कि जो कुछ जी चाहता है करें, लेकिन याद रखें कि खुदा अदालत में लाएगा। खा पोशीदा करें, खा खुलेआम करें, खुदा के सामने वो बिल्कुल जो है वो खुली है, खुदा की नज़र उस पर है। इसलिए नौजवान जो हैं, ख़ास तौर पर मसीही जवान, इनके लिए बहुत जिम्मेदारी भी साथ साथ आती है कि जहाँ ये आज़ादी है वहाँ पर खुदा का खौफ, और खुदा के खौफ के बारे में लिखा है कि ये हिकमत का शुरू है। इंसान दानिशमंद कौन है जो नसीहत सुनता है? ये नसीहत तो उसने की, लेकिन कौन है जो नसीहत पे अमल करेगा? दानिशमंद। क्योंकि अमसाल की किताब में हम पढ़ते हैं 13वें बाब पहली आयत में, दानिशमंद बेटा अपने बाप की तालीम को सुनता है, लेकिन ठट्ठाबाज सर्जिश पर कान नहीं लगाता। आप जो क्रिकेट जब आप सीखते हैं तो जब आपको कोच कुछ कहता है, अपने तजर्बे की रोशनी में वो कहता है, और जब वो आपको कुछ समझाता है कि ये करना है, ऐसे करना है, अगर आप इस नसीहत पर अमल नहीं करते तो क्या आप कामयाब खिलाड़ी बन सकते हैं? अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं? मेरा ख्याल नहीं बन सकते। लेकिन अगर आप कोच की बात को ध्यान से सुनते हैं, वो जो नसीहत करता है, अगर आप उस पर कान लगाते हैं, और सारे नहीं,
चंद एक जो है वो बहुत ध्यान से, इसी तरह हाल है जैसे क्लास में एक टीचर जो है वो लेक्चर तो सबको बराबर देता है, 20, 25, 30 बच्चे बैठे होते हैं, लेकिन फर्स्ट एक ही आता है, और इसलिए कि वो पूरी तवज्जो और फोकस से सारी बातें सुन रहा होता है। वही कामयाब होते हैं जो नसीहत को ध्यान से सुनकर उस पर अमल करते हैं। और आज हमारे लिए नसीहत का मंबा क्या चीज़ है? दाऊद ने कहा जवान किस तरह अपनी रविश को दुरुस्त रख सकता है, सिर्फ वो कलाम पर अपना ध्यान रखें। जब ध्यान कलाम पर लगाएंगे, मेरा ईमान है कि आप सब कलाम पढ़ते हैं, ज़रूर पढ़ते हैं, लेकिन मैं एक नसीहत आपको करना चाहता हूँ कि आप कलाम को पढ़ें। और आज से वो लोग जो पढ़ रहे हैं बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो शुरू से आखिर तक नहीं पढ़ रहे, पैदाइश से लेकर मुकाशवा तक, वो आज से पैदाइश से मुकाशवा तक पढ़ने का भी तजर्बा करें। मैं जानता हूँ एक बहुत बुजुर्ग, उनके पास हम बैठे हुए थे, तो वो पढ़ रहे थे और वो अहबार तक पहुँचे थे। बड़ी खुशी से मुझे बताने लगे, कहने लगे पादी साहब मैं अहबार तक पहुँच गया, और खुशी उनकी चेहरे से अयां थी, मैं देख सकता था कि वो बहुत खुश थे। तो मैं सोच रहा था कि ये तो बहुत इनकी उम्र होगी, तो अब ये अहबार पे पहुँचे और ये पढ़ रहे हैं। वो बहुत कुछ पढ़ते थे, आगे से पीछे से ध्यान से सारा कुछ पढ़ते, लेकिन उन्होंने शुरू से आखिर तक बाइबल मुक़द्दस को नहीं पढ़ा। अब उनको ये सादत हो रही थी कि वो शुरू से आखिर तक पढ़ रहे थे। तो आप जो कि जवान हैं, अभी आपके पास बहुत वक्त है, आप बाइबल मुक़द्दस को, क्योंकि ये है नसीहत का हमारे लिए आज सबसे बड़ा जरिया। आज अगर आपको नसीहत मिलेगी किसी बात के लिए, अगर आपको हदायत मिलेगी, तो वो कलाम से मिलेगी। शुरू से आखिर तक इसको पढ़ें। सिर्फ 66 किताबें, कुछ छोटी हैं, कुछ ज़्यादा बड़ी हैं, और इसमें 1189 चैप्टर हैं। अगर आप इसको डिवाइड कर लें अपने टाइम के मुताबिक, तो आप बड़ी आसानी से इसको 1 साल में, 6 महीने में अपने टाइम के मुताबिक इसको पढ़ सकते हैं। आप ज़रूर कोशिश करें, और ये हदायत मिलती रहेगी आपको हर रोज़। आप स्टडी में हैं, आपको हदायत मिलेगी, अपने घर की ज़िंदगी में हैं, आपको हदायत मिलेगी, आप कलीसियाई ज़िंदगी में आपको हदायत मिलेगी। और ये नसीहत आपको हर रोज़ कोई एक नई बात से, मुझे तो आज भी जब मैं कलाम पढ़ता हूँ, पहले पढ़ी हुई बातें वो हर रोज़ के लिए एक नई बात, नया मतलब ज़िंदगी में देती है। और मेरी आज आप सबके लिए ये दुआ है कि खुदा आपको, जब दाऊद नसीहत करता है और दाऊद का बेटा वाइस जो है वो नसीहत करता है जवानों को कि अपनी जवानी के दिनों में खुदावंद को याद करो और अपनी जवानी में खुश हो, और उसके अयाम में जी बहला, और अपने दिल की राहों में और अपनी आंखों की मजदूरी में चल। लेकिन याद रख, जब वो नसीहत करते हैं तो हम याद रखें और इस कलाम को हर रोज़ पढ़कर इससे नसीहत और रहनुमाई और हदायत के लिए, फिर आप हर फील्ड में देखेंगे कि आप कामयाब। खुदावंद आप सबको बड़ी बड़ी। मैं भाइयों में से चाहूँगा कि कोई आगे आए और दुआ में मलियान में करें। शौकत भाई। हम अपने सर को झुकाएं और खुदावंद का शुक्र करें जिन्होंने हमें ये ज़िंदगी बख्शी। कदूस कदूस रब अल्फाज जो थाज है जो आने वाला है, पेरी खुदावंद शुक्रगुजार हूँ तेरी नेमतों के लिए, बरकतों के लिए, आज के दिन के लिए, इस मेल मिलाप के लिए, इस कष्ट के लिए, पेरी खुदावंद तमाम जिंदगियों के लिए, पेरी खुदावंद इस मौका के लिए, पेरी खुदावंद जो हमें तूने मौका बख्शा कि हम तेरे कलाम को सीख सकें। पेरी खुदावंद हम जवानी के दिनों में पेरी खुदावंद बुरे कामों में न जा सकें। पेरी खुदावंद ये कलाम हमारे लिए तब्दीली का बायस है। पेरी खुदावंद अरे पेरे खुदावंद तमाम जिंदगियों के लिए तेरा शुक्रगुजार हूँ। पेरे खुदावंद जो इस वक्त तेरे हजूर सामने हैं, पेरे खुदावंद एक एक जिंदगी को छू बड़ी बरकत दे। पेरे खुदावंद जिस तरह उन्होंने ये कलाम सुना है, पेरे खुदावंद इस पर अमल करें। पेरे खुदावंद 100 गुना 60 गुना फल लाने वाली जिंदगियाँ बने हैं। पेरे खुदावंद तेरे खादम के लिए दुआ चाहता हूँ। पेरे खुदावंद जो इतनी दूर से आए हैं, तेरी खिदमत कर रहे हैं, पेरे खुदावंद जिनको तूने हमारे दरमियान पहुँचाया, अपने कलाम के वसीले से हमारी ज़िंदगियों को बदलने का सबब बनाया। पहले खुदावंद इनके लिए दुआ मांगता हूँ, जैसे वो सही सलामत यहाँ पर पहुँचे, अपने घराने में पहुँचे, तेरा शुक्र अदा करें। पहले खुदावंद रास्ते में जाने में इनकी मदद और हिफाजत करना,
भाई सालमन के लिए दुआ मांगता हूँ, बल्कि पूरी इंतज़ामिया के लिए दुआ मांगता हूँ। पहले खुदावन जो ये टूर्नामेंट करवा रहे हैं, पहले खुदावन उनके साथ होना, उनकी बरकत देना, सेहत देना, तंदुरुस्ती देना, हिम्मत और ताकत देना, कुव्वत देना, ज़िंदगी देना पहले खुदावन, ताकि आने वाले दिनों में भी पहले खुदावन ऐसे मौके मुहैया करते रहें, ताकि मसीह लोग तेरे कलाम के वसीले से ज़िंदगी बदले हैं पहले खुदावन, तेरे कलाम के वसीले से ईमान लाए हैं पहले खुदावन। इन लोगों के लिए दुआ मांगता हूँ जो तेरे हुजूर सामने वो हैं पहले खुदावन। ऐ पहले खुदावन को तमाम बदियों, बुराइयों, गलतियों, कोताहियों, गुनाहों से बचाना और कलाम पर पूरा अमल करने की तौफीक देना पहले, मदद करना, हिफाजत करना, छोटे आपको सुनना और कबूल करना, चल मसीह के नाम से आमीन। हमारे बाप जो आसमान पर है, कहना चाहिए जमीन पर हमारे रोज रोटी आज मिले और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं हमारे अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत टूर्नामेंट में शामिल तमाम टीमों के साथ, इंतज़ामिया के साथ, कलीसिया के साथ और आलमगीर कलीसिया के साथ अब्दुल आबाद होता रहे। खुदा वाहद, बाप, बेटे और रूह कुद्दूस के नाम। थैंक यू सर, शुक्रिया।